But the source of all our offenses is to maintain material attachment. Why are we doing sinful activity? Because we have material attachment. Why we not enter while we chanting? Because we have material attachment. Why we worshiping the demigods? We have material attachment. Why we are offending the Vaishnava? Because we have material attachment. So the next question is how to become free from material attachment. गुरुजी पानी पीना चाहते हो? पानी नहीं, पानी है ना? इतनी देर कीर्तन किया तो गला सूख गया होगा। नहीं Radharani supply. Many people believe first you have to become free from material attachment, then you can become attached to Krishna. But this is not possible. Because unless we got something better, we cannot give up something lower. ये पढ़ रहा हूँ ये पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ रहा हूँ। हाँ करो। पढ़ रहा हूँ मैं इसको। या तो मैं आपके अमृत वचन सुनना चाहता हूँ, आप सुना दो। सुना। Maybe I'll try to. You will translate. Okay. Please don't use very hard English. No. My English is simple. So, the nature of the soul is to have happiness, to enjoy. The nature of the soul is to enjoy, to have happiness. तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो आत्मा है उसका स्वभाव तो हमेशा आनंदित रहना है। So, for millions of life, we got this happiness from different material objects. So this is what we believe, happiness is only there. तो बहुत जन्मों से हम जो ये सुख है वो हम बहुत ही जगह में ढूंढ रहे हैं, चीजों में और सब में। तो हमको लगता है कि इसी में सुख है, कि इसी में सुख है इन चीजों में। But by Krishna's mercy, we meet the Vaishnava, then we experience a different kind of happiness. लेकिन जब ठाकुर जी दया करते हैं तो हमें भक्त मिलते हैं, वैष्णव मिलते हैं और फिर हमें सच्चा सुख पता चलता है। Then this happiness actually satisfies us. और यही इसी आनंद से, इसी सुख से हमें असली शांति मिलती है, संतोष मिलता है। So then naturally we're gonna want to know how can I always be in that state of consciousness. और जब हमें ये सच्चा सुख मिलता है तो हमें लगता है कि हम हमेशा कैसे इस स्थिति में रह सकते हैं। Then we associate more with the devotee. और फिर हम भक्तों का और संग चाहते हैं। Then we will understand more actually what to do and not to do. और फिर हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। Because to progress spiritually, we have to understand what is favorable and not favorable, प्रतिकूल and अनुकूल. और फिर भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है, क्या अनुकूल, वो समझ में आता है। If we don't understand this, we will never progress spiritually. अगर हमको ये समझ नहीं आता तो हम कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। So from book, we can have some little direction. From books, from reading book, we can understand a little bit what's favorable, what's unfavorable. तो शास्त्रों से गुरुदेव हमें पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। But it's only by association with devotee. They have four relations actually what's favorable for us. Then we will also understand what should I do and what should I not do. तो शास्त्रों से तो कुछ पता चलता है, लेकिन भक्तों और वैष्णव के संग से ही सही में समझ में आता है। केवल भक्तों के संग से ही समझ में आता है कि क्या प्रतिकूल है, क्या नहीं। हाँ. So now I understand what's favorable for me, but now I have to apply to my life. और जब ये समझ में आ जाता है क्या अच्छा है क्या नहीं, फिर हमें उसको अपने जीवन में उतारना है। So, but what's gonna motivate me to endure this much, to change my life? हाँ, तो आप इनकी बोली समझ जाते हो, मैं तो समझता नहीं। बोलो। तो जब ये समझ आ जाता है तो हमें किस चीज से उत्साह मिले कि हम ये करें जो करना चाहिए। So by associating devotee, we will experience this higher happiness. So slowly, this is what's going to motivate us to let go something less, because now we're getting something higher. So भक्तों के संग से धीरे धीरे हमें जब वो अच्छा लगता है, वो जो असली सुख आनंद मिलता है, तब हम धीरे धीरे उसकी तरफ अग्रसर होते हैं।
आई एम ट्राइंग। आगे आगे बोलो। धन्यवाद। So, Shastra says very clearly that the Yuga Dharma is to chant and hear the holy name and hear Krishna's pastime in the association of pure devotee. तो शास्त्रों का जो युग धर्म है कलयुग में, वो है भगवान का नाम कीर्तन और उनकी गुण लीला का श्रवण कीर्तन और भक्तों का संग। But no, we have to do those first two things in the association of pure devotee. If we do alone, we're going to be doing for many lives. तो हरि नाम और भगवान के गुण लीला का कीर्तन भक्तों के संग में करना चाहिए। Because without association, we're going to be doing this for many lives. उनके संग के, भक्तों के संग के बिना हम अकेले अकेले काफी जन्मों तक भटकते रहेंगे। Association, consciousness can only be changed by association. हमारी चेतना भक्तों के संग से ही उच्च स्तर पे जा सकती है। जी जी। Like, our process is we're depending on mercy. We are depending on mercy to progress. तो जो ये पूरा महाराज ने बताया, ये पूरा ठाकुर जी की कृपा पर ही। हाँ, मिलेगा नहीं चलो मिलेगा नहीं मिलेगा, no progress. हाँ, बिना हरी कृपा मिले नहीं सकता, उनकी कृपा से मिलेगा। So then, if we associate with devotee, then slowly, like Mahaprabhu says, when we're chanting, we're cleaning the mirror of the heart. चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं कि जब हम हरिनाम करते हैं तो हम अपना हृदय शुद्ध कर रहे हैं, मलिनता उसमें से धो रहे हैं। So our heart is covered with so many layer contamination, actually we cannot feel spiritual emotion. क्योंकि हमारे हृदय में इतनी मलिनता है कि हम वो अनुभव नहीं कर पाते। So by chanting, slowly those layers remove. तो हरिनाम से ही ये हृदय शुद्ध होगा। By association, by seva. वैष्णवों की सेवा से और उनके संग से ही। And when they will speak pastime of Krishna, when they will speak, then I will start to feel some spiritual emotion in my heart. और जब वैष्णव ठाकुर जी के लीला और गुण सुनाएंगे, तब हमारे हृदय में वो उतरेगा। So now, when I be chanting now, because I'm tasting something very high, which is spiritual, then I'm going to be a little more attentive when I'm chanting. तो क्योंकि जब हमें ये रस मिलता है, तब हम हरिनाम में ज़्यादा हमारी रुचि हो जाती है, धीरे धीरे रुचि बढ़ती है। So now, because I'm chanting with more attention, the layer of going faster. और क्योंकि जब हरिनाम हम ध्यान से करते हैं सुन के, तो और जल्दी से हमारे हृदय शुद्ध होता है। So now when I'm here the pastime, more emotion come, more feeling about Krishna. और उसके बाद जब हम वापस से भगवान के बारे में सुनते हैं, उनकी लीला के बारे में, तो और ज़्यादा हमें उत्साह होता है। तो ये क्रम चलता रहता है। So then now we are be chanting again, then even more focus, because now I'm really getting a taste. हाँ, और फिर और हरिनाम से फिर और ध्यान बढ़ता है, तो धीरे धीरे वो क्रम They go together. जी जी। Because if we only chant the holy name and we don't associate devotee with Hare Krishna pastime, the most we can achieve is mukti, bas. लेकिन अगर हम खाली हरिनाम करेंगे और भक्तों का संग नहीं करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बस मुक्ति मिल सकती है। Bas. गोलोक तक गोलोक नहीं मिलेगा। only mukti. संग जरूरी है, संग जरूरी है। So any question? किसी को कोई प्रश्न है? बाबा, अनुभूति इज मोर इम्पोर्टेंट या भगवान का जप ज्यादा इम्पोर्टेंट? भगवान की अनुभूति होना इम्पोर्टेंट है? Experience of speak in English, please. So महाराज, means realization or little a stage before realization is more important or jap is more important? क्योंकि हम दर्शन बोलते हैं ना, भगवान के दर्शन हो जाए। I mean the desire to have darshan. It is more important or jap is more important? Well, I mean, if we don't have desire to see Krishna, then why would we chant? To have mukti, to have material thing? Like everybody, when we start bhakti, we're doing Misra bhakti.
which means we are approaching Krishna because we want to stop suffering. We want mukti actually. Sorry. So basically, when we start the process of bhakti, actually everybody, what they don't understand, but they want mukti. But what they want, they don't want to suffer anymore. This is why we're entering bhakti. We're tired of suffering. So now we're doing the best. So we want mukti. We don't want Krishna. जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है खाली दुखों से छुटकारा हो, मुक्ति मिले। उस समय हमें भगवान कृष्ण नहीं चाहिए होते हैं। उस समय हमें खाली दुखों से छुटकारा चाहिए होता है, मुक्ति चाहिए। ज्ञान नहीं है मिश्र भक्ति। जिसको मिश्र भक्ति बोलते हैं। हाँ. So if we do bhakti on this platform and we only associate with people doing Mishra bhakti, we're going to be doing this for many lives. So we have to associate with those who actually are giving their life for Krishna. They have this joy, they have that state, and this state we come into our. There's no other way. There's no other way. तो continue to do this. तो महाराज बोल रहे हैं कि अगर हम उन्हीं के साथ संग करेंगे जिनमें मिश्र भक्ति है तो हम काफी समय तक वही करते रहेंगे। हाँ, टाइम लगेगा। तो हमें उच्च स्तर के वैष्णव से संग करना चाहिए ताकि हमें सच्चा शीघ्र नहीं पहुंचेंगे। जी जी जी। पर महाराज जी, इनका प्रश्न है, हर क्वेश्चन इज रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट और योर ट्रस्ट अपॉन चैंटिंग इट विल कम ऑटोमेटिकली। What realization do we have? How much realization do we have? What do we know about Krishna? We're trying to understand Krishna with our little mind. It's not possible. Her question is, I understand. So chanting, we should depend on chanting, the realization will come. Now we realization is important, then we are chanting. We should depend on Krishna. We should be dependent On Krishna, mercy. This is because we cannot chant without Krishna's mercy. We cannot accomplish nothing without Krishna's mercy. So mean we have to take shelter. Shelter means to understand nothing's in my control. Krishna, my life is in your hand. You do as you like. This is just surrender and chant. You want to say just surrender and chant. But whatever Krishna wants me to do. Krishna, he will make us realize. Yeah, as whenever we our desire to please Krishna increase, then He will reveal what's necessary for us. There's many stages in bhakti, and basically whatever we're ready to understand, He will give us this instruction. Either it comes internally or externally, He will provide instruction. Do chanting, seva, leave upon Krishna. Chanting, hearing, seva, like it's hearing is our pastime doesn't burn. Otherwise, we will only have mukti. If we don't become attracted to Krishna, then it will take many lives. Many lives. क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। महाराज बोल रहे हैं कि हमें पूरी तरह से भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान अपने आप अंदर से निर्देश देते हैं। और अगर हम खाली if we chant alone, that's what you're saying. If we chant without living the pastime, then how we going to become attached? If we don't know nothing about Krishna, how we become attached to Krishna? अगर हम भगवान की लीला समझे बिना, उनको श्रवण किए बिना अगर हम खाली हरिनाम करेंगे तो हमें भगवान से लेकिन वो अटैचमेंट नहीं आएगा। It will take longer. It will take place, but it will बहुत समय take लगेगा, longer. ज़्यादा समय लगेगा। But if we hear from somebody that has attachment to Krishna, then this attachment will come in our heart. If we hear from somebody that has no attachment, then nothing will happen. तो भगवान के बारे में श्रवण करके उनसे हमें अटैचमेंट होता है, उनके बारे में और सुनने का मन होता है। From somebody who has attachment to Krishna. Attachment. और उन्हीं से सुनना चाहिए जिन्हें भगवान से प्रेम है, जो भगवान से आसक्ति है, जिन्हें ऐसे साधु से सुनना। Yeah, otherwise nothing will happen. नहीं तो कुछ नहीं होगा। Our process is a descending process. Our endeavor is nothing. Nothing. तो हमारी साधना से कुछ नहीं मिलता हमें, सब कृपा है जो ऊपर से आती है नीचे। The only thing that's valuable about our endeavor is our sincerity. If Krishna sees we're sincere, then He will give mercy. क्या बोल रहे हैं कि हमारी साधना का उतना ही महत्व है जितना हम सिंसियरिटी से करते हैं, गंभीरता से लगन से करते हैं। Yeah. Then Krishna mercy will come. Because so many people try by their own endeavor to progress. So many people study so many shastra, life after life, nothing happens.
Everything is depending on तो mercy. लगन से करेंगे तभी भगवान की कृपा मिलेगी, नहीं तो कितने ही लोग शास्त्र पढ़ते हैं सालों तक, लेकिन हाँ, वो capacity. अपने आप पढ़ते हैं, लेकिन वो कृपा नहीं होती। वो संसार में घुसे रहते हैं। मूल बात है महाराज जी, संत ही सब कुछ करवा सकते हैं। मूल बात है संत ही सब कुछ करवा सकते हैं। चैंटिंग भी सब कुछ संत की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। मूल बात तो ये। I mean, if we chant, because we're chanting with a parade will gradually take us to platform and knowledge. But this will take many lives. So why waste many lives? If we associate with those who have this knowledge, then we don't have to waste life. Even chanting, Yeah. even chanting is a mercy of a pure devotee. Even can chant. Can, utter anything. single word. Anything, whatever we understand about Bhakti came by the mercy of Vaishnava. Whether he was a big Vaishnava or a small Vaishnava, whatever we have realized is from the mercy of a Vaishnava. तो बोल रहे कि नाम अपराध से, अगर हम हरिनाम करते हुए नाम अपराध करते हैं तो बहुत समय लगेगा, हाँ, वो लेकिन तो। सच्चे वैष्णव का संग करके जो भी हमें कृपा मिलती है वो उनसे ही मिलती है, वैष्णवों से ही मिलती है, सच्चे संतों से ही मिलती है। ठीक। जो कुछ भी आज तक समझ में आया हमको उनकी कृपा से समझ में आया। You also had a question? I'll ask later because I have to interact. Okay. Okay. Nice question. No. This is confirmed in Shri Upadeshamrita Rup Goswami says, Tanama Rupa Charitari Sukirtanana Smrito Pranena Rasana Manasi Niyajit. हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं केवल जनानुरागी जनानुगामी, जो भक्ति जिसके दिल में अनुराग होता है, इससे हमारा भक्ति our devotion will awaken by associating with someone who has rag in their hearts. उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि मतलब हम उन्हीं के संग से भक्ति में लग सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जिनके हृदय में खुद से पहले भक्ति प्रकट हुई हो और वो अनुराग से भजन करते हैं। अगर वो हमें सिखाएंगे तो हमारे अंदर भी अनुराग उत्पन्न होगा। जिसके पास वो स्टोर होगा वही तो दे सकता है। जिसके पास कुछ होगा ही नहीं, वो क्या देगा? वही है, करवाता भी वही है, सब कुछ वही करवाता है। खुद कुछ नहीं कर सकते हमारे। मैं तो कहता हूँ भगवान से जल्दी कोई नहीं मिले। इलेक्शन वही करवाता है। लोग बता रहे हैं। कैसे मिले बाबा? यही तो बात है। भगवान से नजदीक कुछ नहीं है, बताओ है कि नहीं? हमारे नजदीक से नजदीक भगवान है और संसार दूर है, है कि नहीं? तो भगवान ने हमको प्रकट किया तो हमको दो चीज दी कि भाई इस दो चीजों से ही तुम्हारा जीवन चलेगा। क्या क्या दी? पानी, हाँ, पानी दिया कि नहीं? पानी भी तो ले सकते। और दूसरों खाने को लिए अन्न दिया। दो चीज दी। अब इस दोनों को काबू में कर लो, भगवान मिल जाए। आप कहोगे कैसे काबू में करें? काबू में करने के भी तरीके, और ये सिद्धांत है ना, ये शास्त्र का सिद्धांत है, अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ। तो कैसे किया जाएगा? पानी को हम पीते हैं, उस समय बोलो हरे कृष्णा, वो चरणामत बन जाएगा, चरणामत बन जाएगा। वो करके देखो, प्रैक्टिकल है। और शास्त्र का उदाहरण भी बता दूंगा, समझे? और अन्न को कैसे करोगे? अन्न वहाँ तो पानी पीते हुए हरे कृष्ण बोल दिया, अब अन्न खाते भी हरे कृष्ण मन मन में बोलते रहो। देखना कितना फायदा होता है। तो हमारे अंदर
हमारे दुष्ट बैठे हुए हैं जो भगवान से मिलने नहीं देते हैं। उन दुष्टों को पहले मारो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। वो दुष्ट हमको जाने नहीं देते हैं। वो दुष्ट क्या क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, ये बड़े पड़े। तो अहंकार तो सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे हमको ठंडा पानी करने के लिए क्या देते हैं? बर्फ, मशीन, फ्रिज, है? फ्रिज। ये फ्रिज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसमें जो भी चीज रखोगे वो मिट्टी बन जाएगा। लेकिन फ्रिज के जो आविष्कारक हैं वो कहेंगे जरा ये तो इसको मारना चाहिए। ये तो हमारा व्यापार को खराब करता है। लेकिन बताना है हमको, गुरु जी ने कहा है कि जो नुकसानकारक है उसको बताओ। और तुम हो गृहस्थी, अगर तुम कोई छुपाओगे तो तुम्हारा प्रचार ही नहीं होगा। छुपाना मत, हर चीज बताओ। मन का भजन को तो छुपाना ही चाहिए। कि बोले नहीं, तुमको नहीं छुपाना चाहिए। क्यों? किसको छुपाना चाहिए? जो अध कतरा हो, कमजोर हो, तो उनका आदर सत्कार होगा तो उसको घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तुमको आने वाला ही नहीं। क्यों नहीं आएगा मेरे को? बोले तुम तो गोलोक धाम से आए हो। अच्छा, तुम्हें गोलोक धाम से मैं कैसे आऊँगा? बोले तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, गोलोक धाम का सर्टिफिकेट है। मुझे तो मालूम नहीं है। सर्टिफिकेट है तो कौन सा सर्टिफिकेट है बताओ? तो भाई गुरु जी बताएगा जब तो दूसरों को बताऊंगा मैं। तो गुरु जी ने बताया कि देखो शास्त्र में क्या लिखा है कि भगवान का एक आयुध होता है ना, हाँ, जिसके हाथ में वो भगवान के आंख से आता है। अरे तुम्हारे तो 10 आयुध हाथों में, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वैजंती माला, उर्दू रेखाएं, तुमको सबको दिखाओ। हाँ, तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। क्या दिखाऊंगा? तो जब दिखाओगे जब तो तुम पे श्रद्धा होगी। क्या गृहस्थी होते है भी इसके तो इतने, ये तो बहुत उच्च कोट का है। तो इसलिए भगवान, मैं कहता हूँ भगवान बहुत जल्दी मिलता है। पर जैसे मैं बोलूँ जैसे करो, ये कैसे मिलेगा नहीं। बाबा, हाँ एक गिनती है आपसे। हाँ, 64 माले आपने कहीं क्या कहा? कर सके। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ आप बोलो। हमने एक माला से 64 पर ऐसे आ गए। किसकी कैसे आए बाबा? आपकी कृपा से। देखो, और ये बाबा एक बात और, ये छोटी सी बात जल और भोजन की, ये कर ही नहीं पा रहे हैं बाबा। आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। आपको कृपा करनी पड़ेगी बाबा, देखो, तभी कुछ हो पाएगा। हाँ, हम तो साधारण गृहस्थी हैं। बाबा नहीं, हम तो साधारण गृहस्थी हैं। वो जो कृपा करता है वो करता है गुरु और भगवान, वो ही कृपा करता है। तो आप हमारे, वो तो हमको माध्यम बना दिया है। कृपा उनकी ही होती है। हमको हरि नाम क्यों दिया गया है? हमको हरि नाम इसलिए दिया गया है कि इस हरि नाम को जपने से, हाँ, और हृदय निर्मल हो जाएगा। क्यों? अनंत कोटि जन्मों से
हमारा हृदय मलिन हो रहा है, क्योंकि अनंत जन्मों में हमको अज्ञान से भरे पड़े थे। अब कभी संत मिला नहीं, संत के बिना ज्ञान होता नहीं, इसलिए हमको दुख सागर में डुबो दिया। संसार क्या है? दुख सागर है। सुख सागर कहाँ मिलेगा? भगवान के पास, संत के पास मिलेगा सुख सागर, और कहीं नहीं मिलेगा। तो भगवान का कहते हैं हम तो भगवान को नहीं चाहते, तो तुम सुख तो चाहते हो, तो सुख कहाँ मिलेगा? वो तो भगवान के पास है, इसलिए आपको भगवान को चाहना ही पड़ेगा, तभी सुख मिलेगा। तो इसलिए पानी को और अन्न को काबू में कर लो, भगवान तुरंत आ जाएगा। और कितनी बार बोल दिया मैं, और उसका अब टाइम तो है नहीं, उसका जो रास्ता है वो आज नहीं बता सकता। क्यों कि 7:15 बज गए यार, मैं 8 बजे सो जाता हूँ। अब 8 बजे सो के मैं तो 12 बजे उठ जाता हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से गुरु जी ने बोला है सब बता दिया करो। तो मैं तो 70 साल से 12 बजे जगता हूँ और एक टाइम खाता हूँ। अब परिवार वाले बोले अब आपने बुढ़े हो गए, अब तुम्हारी उम्र 98 होने वाली है, इसलिए दोनों टाइम खाया करो। मैंने कहा दोनों टाइम खा लूँगा, तो मैं दोनों टाइम फिर खाने लगे। भाई तुम कमज़ोर हो जाओगे। तो घर वालों का भी कहना मानना चाहिए, नहीं घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए कल मैं डिटेल में कि भगवान कैसे मिल सकता है, वो है 40 दिन का कोर्स है। 40 दिन में भगवान तुमको 100% मिल जाएंगे। देखो जिसको भगवान मिल जाता है ना, उसमें क्या गुण आता है वो बताता हूँ। भगवान जिसको मिल जाता है तो उसको उसमें क्या गुण आता है। तो भगवान गुरु जी ने कहा है ना तुम छुपाना मत, तो मेरे को तो 3 बार भगवान मिल गए और जो मेरे साथ उनको भी दर्शन करवा दिया। जो मेरी पुस्तक में लिखा हुआ है किस किस को दर्शन हुआ था जी, उनको भी दर्शन हुआ। हाँ, तो इसलिए वो क्रम मैं आपको कल बता दूंगा कि किस तरह से भगवान मिलेगा। तो भगवान मिलना दूर नहीं है, भगवान से नज़दीक तो कुछ है ही नहीं। हाँ, सब चीज़ दूर हैं, लेकिन भगवान नज़दीक से नज़दीक है हमारे पास। अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हमको माया ने फांस रखा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। हाँ, माया दूर हुई और भगवान आपसे 1 सेकंड दूर नहीं होगा, फिर आपको पकड़े रहेगा और न आप उससे दूर हो जाओगे। ये फंडामेंटल रूल है, समझे। हम सब कह रहे हैं अरे भगवान मिलेगा ही नहीं। हमारे गुरु और को कैसे मिल गया? ऐसे कैसे कहते हो? आज भगवान तो मिलेगा ही नहीं। तो हमारे गुरुवर उनको कैसे मिल गया? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, सबको कहाँ मिला ना? मेरा को मिला कि नहीं? मेरा को मिला अभी कलयुग में, सबको मिला। हाँ, और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभात जी को मिला, सबको मिला। तो हमको मिल सकता है। हम भी तो उसके ही बेटे हैं, भगवान के ही तो बेटे हैं हम भी, वो भी भगवान के ही बेटे थे। हाँ, तो हमको मिल सकता है।
तो इसलिए वो रास्ता कैसे करना चाहिए, और बहुत सरल, इससे सरल रास्ता भी नहीं है, सब में कठिनाई है। हमको हरि नाम, भगवान कलयुग में हरि नाम क्यों देते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, केवल, केवल का मतलब दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा, जब जब के और बैकुंठ चले जाते हैं। तो लेकिन लिखा है कि सब देखा देखी करते हैं, सच्चे दिल से हरि नाम नहीं करते, सब देखा देखी करते हैं। हरि नाम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। इसका मतलब सुपीरियर टीवी हो गया और इन्फीरियर मानो भगवान हरि नाम हो गया। तो कितना बड़ा अपराध किया। और फिर कहते हैं हम तो 2-2 लाख करते हैं, हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं। अरे फ़ायदा कैसे होगा? तुम सुचारू रूप से हरि नाम करते ही नहीं हो। बात कर रहे हैं, हरि नाम हो रहा है। ऐसे होता है क्या? भजन होता है एकांत में, एकांत में करो। अब मैं क्यों 12 बजे देखता हूँ? एकांत में करता हूँ। और देखो इस 97-98 साल की उम्र में आदमी इतने देर बैठेगा क्या? 12 बजे से 7 बजे तक बैठेगा? कमर में दर्द हो जाएगी, घुटनों में दर्द हो जाएगी, होती तो नहीं है। क्यों होगी? नाम में अमृत बरसता है, नाम अमृतशील है। नाम की महिमा तो कृष्ण से भी बड़ी है, राम से भी बड़ी है। तो राम जी कह रहे हैं, कहो कहाँ तक नाम बढ़ाई, और राम न सकई नाम गुण गाई। राम भी कह रहे हैं मैं अपने नाम का प्रभाव नहीं बता सकता। जब भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं, वो भी अपने नाम की शक्ति नहीं बता सकते। नाम की शक्ति से ही गिरिराज जी उठाया था। उनकी शक्ति से ही। इसलिए नाम में जो शक्ति है किसी में नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में नाम से बड़ा शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए हमारे गुरु वर्ग 2-2 बजे तक उठते थे। तो हमने सोचा अब भाई मनुष्य जन्म तो बार बार मिलेगा नहीं। मनुष्य जन्म मिलता है करोड़ों अरबों युगों के बाद में, अरबों युगों के। अब बोलो अरब युग, त्रेता द्वापर कलयुग, त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग, 4 युगों का एक युग। तो एक युग हुआ ये, और अरबों युगों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। और उस मनुष्य जन्म को यूं ही बेकार कर दिया है। कोई क्या कर रहा है? बकरी चरा रहा है, कोई खेती कर रहा है, ऐसे घुमा दिया। कोई व्यापार कर रहा है। तो देखो अपनी जाति वाले के पास नहीं जाएंगे, हम दुखी रहेंगे। जाति वाले के पास बैठने से ही सुख मिलेगा। छोटा सा बच्चा बच्चों के पास ही जाता है, जवान के पास नहीं जाता। उसी के साथ खेलना चाहता है। जवान के पास बात करेगा, और बुढ़ा बुढ़ी के पास बात करेगा। बुढ़ा है ना, वहाँ जवान नहीं जाएगा बुढ़े के पास। बुढ़े इकट्ठे होते हैं। होते हैं कि नहीं? बताओ। अच्छा ये हाल है। और कुत्ता कुत्तों के पास जाएगा। हाँ, पर कुत्ता है ना जो बदमाश है, वो भूखता है, दूसरे कुत्तों को नहीं आने देता। वो है ना अपना अपनी लगता है। लेकिन कबूतर के पास जाएगा, कौवा के पास जाएगा।
और मकोड़ा है ना, मकोड़े के पास ही रहेगा। मकोड़ा जैसे जाएगा ना वैसे वैसे जाएगा उसके साथ 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 साथ। गिजाई गिजाइयों के पास रहती है। तो हम हैं, जब तक भगवान के पास नहीं जाएंगे वो हमारा जाति का है तो हम भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए ये जीव आत्मा कहाँ जाना चाहता है? अपने साथी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन माया है ना उसको बीच में फांस लिया। उस माया को दूर करने के लिए साधन है। मैंने लिस्ट बनाई है और वो सबको बांटी है कि एक माला माया की भी कर लिया करो ताकि उसकी कृपा मिल जाए, और एक माला है कलयुग की भी क्या करो, क्योंकि कलयुग है ना, ये कलयुग है जो सम्राट है, 4,32,000 वर्ष तक राज करेगा, तो उसकी भी एक माला कर लिया करो। क्यों? वो कलयुग कौन है? कलयुगी कृष्ण ही है, ब्रह्मा भी कृष्ण ही है और शिव जी भी कृष्ण ही है। वो तो अलग अलग पोस्ट बना दी उनकी, हाँ, जैसे है ना दफ्तर में सभी अलग अलग होते हैं और उनकी ड्यूटी भी अलग अलग कर देते हैं। हाँ, तो अलग अलग ड्यूटी हैं उनके, लेकिन करने वाला तो वही है ना। इसलिए हम दुखी क्यों हैं कि हम अपने जाति वाले के पास नहीं गए, हम कुछ जाति वालों के पास रहते हैं। अब कहते हैं अपनी जाति वालों से शादी करो, पर आजकल तो जाति वालों से करते ही नहीं। जब कि उनका खून ही नहीं मिलता, विचार नहीं मिलता, उनके खून अलग अलग होते हैं। हाँ, इसलिए फिर तलाक होता फिरता है। हाँ, इसलिए कहते हैं जाति वाले को जाति से ही, पर सबकी आंखें मीठी हुई हैं, आंखें मीच रखी हैं। जब दुख पाने के लिए मीच रखें, दुख ही पाएंगे और क्या है। जो शास्त्र की बात नहीं मानेगा वो तो दुख ही पाएगा। हाँ? अरे 7:30 बज गई बाबा, मैं तो 8 बजे सोऊंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे